Yes. Good morning, everyone. How are you all? Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. I'm fine, sir. What about you? I'm also fine, Beta. Thank you. Beta, in our last English live class, we studied the vocabulary section and even answered these questions based on the which topic we were talking about, the strong and weak feeling for the various words. Let's say in our last session we studied about that Tal is having the strong feeling, but where the Tal is having the weak feeling. But as if we compare towering with Tal, then towering is having the similar meaning, but it is having the strong meaning. In the same way, आपका expensive and costly को जो meaning है, both are having the similar meaning, but they used in different ways. जब कई बार हमें ज्यादा फोकस करना रहता है, कहीं पे ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी बहुत ही ज्यादा महंगा है, देन वी यूज एक्सपेंसिव वर्ड. लेकिन अगर सिर्फ महंगा है लेकिन एक्सपेंसिव यानी थोड़ा सा मतलब अमूमन आप बोलना चाह रहे हैं नॉर्मली बस थोड़ा सा महंगा है, तो देयर वी यूज कॉस्टली. ओके, तो Yes, sir. words Yes, have sir. similar meaning. Yes, sir. Strong and weak words that are having the similar Yes, meaning sir. we studied in our last session, and also we answered these questions. So is there any issue, is there any question, any query related to these questions, or should I move ahead on the phonic junction? किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ पूछना है पिछले सेक्शन से? No, sir. No, sir. सभी लोगों ने कंप्लीट लिया है ना? Everybody have completed the exercises or not? Did everybody complete the exercise or not? Sir, completed. Yes, sir. Complete Everybody did not send the Complete. Complete किए हैं. but everybody did not send the pic of their work. मैंने नाम भी लिया है कई सारे बच्चों का, केवल 6 या 7 बच्चों ने फोटो भेजा है. नैना बारी ने नहीं भेजा है, दीपक सिंह ने भी नहीं भेजा है, संजीव कुमार ने भी वर्क नहीं भेजा है, बिमलेश कुमार ने भी नहीं भेजा है, सर मैं यशवर्धन ने भी नहीं भेजा है. टाइम चला गया था. सर टाइम चला गया था मेरा. टाइम चला गया था तो नेक्स्ट डे करना चाहिए आपको, मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना चाहिए, बट यू शुड सेंड. अंचित कुमार ने भी नहीं वर्क भेजा है, इनके पापा से भी बात करनी पड़ेगी. आदर्श आदित्य भी बड़े हैं, जिन्होंने भी नहीं कंप्लीट किया. शिवांगी त्रिपाठी ने भी नहीं कंप्लीट किया. बेटा आपका वर्क नहीं आया था, आपने किया होगा, जब आप भेजेंगे तब मुझे पता चलेगा, सपना नहीं आएगा मुझे. चलो ना फिलहाल now move ahead on the next section, that is the phonic junction. In this section we have to study about the pronunciation. We would be learning the pronunciation of the word, that how we should read, how we should pronounce. So in the phonic junction let us learn about a sound. क्या पढ़ना है साउंड्स के बारे में, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे हेल्प करेगा साउंड्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, to learn the topic, to learn the concept, you all need to read these lines that have been taken from the poem. So read from here. Anchit Kumar, first line you have to read. He opened his beak in his foolish pride. Okay, फिर से पढ़िए इसको अंचित कुमार. What is this? Opened. Very good. जरा ed में हटा दूं. Open. ये क्या लिखा है? ओपन इट बता रहे हैं. जरा अभिनय पांडे आप बताइए अंचित कुमार को ये क्या लिखा है? सर ओपन. सर ओपन. अंचित कुमार आप बताइए क्या लिखा है ये? ओपन इट. Sir. क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? Open. ओपन. अभिनय बता रहे हैं आपको. बहुत सही. चलो गुड. ओपन इज द करेक्ट वन, ओपन इट इज द रॉन्ग वन. ही ओपन हिज वीक, उसने अपने चोट को खोला. इन हिज फुलिश प्राइड, अपने मूर्खतापूर्ण गमन में. एंड डाउन फेल द मॉर्सल. अच्छा चलिए ठीक है, मैंने ही पढ़ना शुरू किया, somebody else has to read. चलिए ठीक है, अभिनय पांडे आप ही पढ़िए इसको. And down fell
ये फील Fill नहीं है, एफ the डबल एल mouth. फील होता है। ये क्या है? Fill. ये फील नहीं है। बीईडी क्या हो जाता है? Bed. आरईडी क्या हो जाता है? Red. इसी तरह एफ ई एल क्या हो जाएगा? Fell. हाँ, तो एफ ई डबल एल फैल ही होता है। एंड डाउन फेल, And down fell the morsel. The fox had H-A-D, had spade. स्पीड नहीं, स्पाइड। ये हेड है, हेड नहीं है। Spied. एच ई ए डी हेड होता है, हेड मीन सिर होता है। हेड मीन सिर होता है। ये एच ए डी हेड है। सी ए टी कैट बोलते हैं, ए का साउंड निकालते हैं। उसी तरह एच ए डी हेड होगा। इन द फर्स्ट लाइन देयर इज ए प्राइड। आई जो आई का साउंड है, आई आप निकाल रहे हैं। प्राइड, स्पाइड, प्राइड एंड स्पाइड आर rhymes to each other. दोनों के sounds, both the words are having the similar sounds. Now read the third line, Barkha. Ha ha, said the fox, and now you see. Read the fourth line, Shivangi Tripathi. Yes, sir. You should not listen to flattery. You should not listen to flattery. Adarsh Singh, fifth line. Vanity is indeed a horrid vice. Vanity is indeed a horrid vice. Pride, spite, vice. बता रहा, आई का जो साउंड है, वो साउंड जो है वो सेम निकल के आ रहा है। ओके, यशवर्धन सिंह। I am sure the lesson is worth the prize. रॉन्ग, इट्स नॉट। इसको आपने गलत पढ़ा है। शिखर वर्मा, आप जरा पढ़िए। I sure the आई श्योर गलत पढ़ रहे lesson. हैं। आप पहला ही गलत बोल दिए। आई श्योर नहीं है। I am sure the lesson in worth the prize. यस, यशवर्धन ने इसको लिसन पढ़ा था। लिसन मीन्स होता है सुनना। मैं इसके पहले एक बार और बता चुका हूं। लिसन मीन्स होता है सुनना, ये लेसन है। लेसन मीन्स पाठ। आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस। आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस। कहने का मतलब ये है, इन दीज 6 lines there are 4 words that is in bold format. Out of these 6 lines there are 4 words that are in bold format, जो कि bold format में है। इस bold format में खास क्या है? खास क्या है, जरा एक बार फिर से listen to the vowel sounds in the words. जो vowel sounds है, ये चारों words में जो vowel sounds है उसको ध्यान से सुनिए। मैं एक बार फिर से मैं स्वयं पढ़ता हूं। Pride, spite, vice, price. Pride, spite, vice, price. That means I is having the same sounds in all these words. उसके बीच में ये आइड आ जा रहा है, ये भी आइड आ जा रहा है, ये भी आइस आ जा रहा है, ये भी आइस आ जा रहा है। So what you need to observe? Other words with the same sounds include cry and light. Other words with the same sound include cry and light. The letters I, ब्लैंक में कोई भी दूसरा लेटर हो सकता है, एंड ई, आई और ई के बीच में कोई भी दूसरा अल्फाबेट आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे आई जी एच अगर है, हाई की स्पेलिंग एच आई, आप कई बार बोलते हैं ना आई जी एच। द लेटर्स आई और ई के बीच में कोई दूसरा अल्फाबेट आ रहा है, या कोई ऐसे लेटर जहां पे आई जी एच साथ में आए, या ऐसे लेटर जहां पे वाई लास्ट में हो, या ऐसा वर्ड्स जिसके लास्ट में आई और ई साथ में आए। मेक द सेम साउंड्स इन दीज वर्ड्स। आपको ध्यान देने की जरूरत है। whenever you read the any words, जैसे आपने इसको यहाँ पे पढ़ा, कई लोग नहीं पढ़ पाए इसको, प्राइड कई लोगों ने पढ़ा, बट इसको स्पीड कई लोगों ने पढ़ा, या कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, तो उन सभी के लिए ध्यान देने की जरूरत है।
बेटा जब कभी भी किसी भी वर्ड्स में, किसी भी शब्द में लास्ट में IGH आए या Y आए या I आए, या लास्ट की बात नहीं, लास्ट में आपका I E के बीच में एक कोई भी दूसरा अल्फाबेट आ जाए, तो वहां पे जो ये वॉबल साउंड निकलेगा आई वाला ही आपको वॉबल साउंड निकलेगा। जैसे कि CRY लास्ट में Y है ना, तो Y का साउंड क्या है? आई। इसीलिए तो बोलते हैं क्राई, क्राई तो नहीं बोलते ना, क्राई। आई बोला लास्ट में कि नहीं? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब यहाँ पे IGH को, अब यहाँ पे IGH को भी आई ही बोलते हैं। देखो लाइट, अगर टी ना होता तो लाइट, टी से टा आ गया ना, तो IGH का साउंड क्या निकला? आई। वाई का भी साउंड क्या निकल रहा है? आई। I. इसीलिए CR से क्रा, वाई का आई, क्राई, क्राई। आई बोले लास्ट में जोड़े ना, इन द सेम वे। Yes, sir. एल से ला, फिर आई और फिर टी से टा, लाइट। इसी तरीके से आपके इस पोएम में कभी भी आपको, इस पोएम में ही नहीं, whenever you read any story, any poem, any book, any line, any words, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, if at the end of the words if there is a Y और IE या IGH, ये ऐसे लेटर्स हैं at the end of the words, then you have to make the sounds of I। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बस यही इतना सब कुछ है, यही सब कुछ है इस सेक्शन में। सिर्फ इतना ही सीखना है कि इफ एट द एंड ऑफ द वर्ड देयर इज a letter having IGH or Y or IE or I_E, then they all would be making the sound of I साउंड आपको बनाना है। Now let us read some of the words। कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि इस तरह के वर्ड्स जब आए, तो मान लीजिए कई बार आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना आता है, लेकिन वो आई साउंड्स आपको निकालना है। अगर नहीं आपको कुछ नया वर्ड्स आ रहा है तो वहां पे भी आप पढ़ ले जाएं आई साउंड्स निकाल के। सो लेट अस रीड सम मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड। चलिए कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं जो कि सेम उसी तरह का सिमिलर साउंड्स निकालते हैं आई का साउंड्स। संजीव कुमार, आर यू एक्टिव? अगर आप एक्टिव हैं, थोड़ा सा आपको दूसरा ऐप अपना ओपन कर रखे हैं मुझे लग रहा है। विमलेश, यू हैव टू स्टार्ट योर वीडियो। आपका वीडियो बंद है। नैना बारी, यू नीड टू रोटेट योर फोन। राजपाल, नाउ रीड द फर्स्ट वन। Child. चाइल्ड। अब यहां पे हम क्या देखे? यहां पे हम क्या देख रहे हैं? चाइल्ड। चाइल्ड में भी आई का जो साउंड है वो आई ही आ रहा है। CS से चा, एल डी से आधा लाउड आपने बना दिया, लेकिन आई बड़ा आ और ई की मात्रा लगा ना। चाइल्ड तो बोल नहीं दिया आपने इसको। Yes, sir. इसको चाइल्ड बोल रहे हैं ना। इसको Yes, child sir. बोल सकते थे। Yes, sir. CHILL Yes, sir. एल भी इसी तरह बन जाता है। लेकिन whenever, अब ये थोड़ा सा, इसको CHILD को चाइल्ड आप बोल रहे हैं। In the same way, there is also I sounds are there. What is this? Aditya. So light. 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 Here also there is a I alphabet which is having the same similar sounds. That means कि इन सारे वर्ड्स को छोड़ते हुए अब यहाँ पे IGH है, तो IGH का मतलब क्या हुआ? आई आ रहा है, L और T, लाइट। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है ऑलरेडी, I have explained this word. Okay. Now move ahead on this. HIDE. 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 Yes, hide is the correct one. Hide is the correct one. HIDE। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, I और E, इसको हाइड ही मत पढ़ने लगीजिएगा। I के बाद अगर I और E के बीच में सिर्फ लास्ट में एक अल्फाबेट आ रहा है, लास्ट में E आ रहा है, तो यहाँ पे केवल आपका E एक तरीके से साइलेंट ही रहता है। साइलेंट लेटर तो नहीं बोलते, साइलेंट लेटर तो नहीं है, साइलेंट लेटर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं HID।
ई, हाइड, आई और ई दोनों मिल करके आई का साउंड निकाल रहे हैं। अगर आई ई ना होता ना तो ये हिड होता है। ई और ई आने की वजह से यहाँ पे आई का साउंड ई के बजाय आई हो गया है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई और ई यहाँ पे ये TIM टिम होता, लेकिन ई आने की वजह से आई का साउंड आई हो गया, इसीलिए क्या हो गया? टाइम। Time. एट द एंड ऑफ दिस वर्ड देयर इज अ वाई लेटर। वाई लेटर जब लास्ट में आए तो वहां पे भी आपको आई साउंड निकालना रहता है। देन व्हाट इज दिस? क्या पढ़ेंगे इसको? Sky. 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 स्काई। बेटा मैं आई ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वहां पे आई नहीं, वो आय है। आपको समझाने में थोड़ा एम्फसाइज, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने में थोड़ा आई को ज्यादा एम्फसाइज कर दे रहा हूँ। इट्स आई, हाइड, लाइट, चाइल्ड। लेकिन अगर सिंगल आई अगर सिर्फ बोलना है तो दैट इज ए स्काई। स्काई मतलब स्काई भी बोल सकते हैं। इट्स नॉट अ, मतलब आपको बहुत ज्यादा ई पे एम्फसाइज नहीं करना है। वाई, WHY, वाई, आई। ये अगर आप आई को आई बोलते हैं तो वही आपका आई, वाई। नाउ इट्स अ, व्हाट इज दिस? Rice. एंड व्हाट इज दिस? Rice. एंड व्हाट इज Rice. इजी वर्ड्स थे एक तरीके से, इजी वर्ड्स थे। Yes, sir. जो टफ था तो वो तो आपके पोएम में था, इसको तो कोई पढ़ नहीं पाया था। अगर इसको भी आप लोग पहली बार में पढ़ ले जाते तो मैं मानता कि आप लोग को समझ नहीं आया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो पढ़ ही ले जाएंगे। ओके, नाउ मूव अहेड इन द एक्सरसाइज पार्ट। नाउ देयर इज एक्सरसाइज। What you have to do? Use words from the table to complete these sentences. Use words from the table. बेटा there is a table. ये table है ना, इसी table में से क्या करना है? You have to use some of the words to complete these sentences. You need to complete these sentences. So everybody have to. Yes, sir. Everybody is supposed to give their answer. I'll ask one question from couple of students. So first. यशवर्धन सिंह, सभी लोग सभी का ध्यान रखेंगे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। यशवर्धन सिंह, व्हाट शुड आई राइट हियर? द व्हिच वर्ड शुड आई राइट हियर? child is playing with the ball. यशवर्धन सिंह इज टेलिंग द चाइल्ड, यहाँ पे लिखा जाएगा चाइल्ड। ये ठीक है, देखते हैं। गौरव पासवान, जरा आप बताइए, व्हाट शुड आई राइट हियर? Sir, child. ऐसा मत सोचिएगा यशवर्धन ने सही बताया है, मैंने सही या गलत अभी नहीं बताया है। मैं सभी से पूछूंगा, यू ऑल नीड टू टेल द करेक्ट आंसर। गौरव पासवान इज ऑल्सो टेलिंग इन द फर्स्ट ब्लैंक्स चाइल्ड शुड बी रिटन, चाइल्ड को लिखा जाना चाहिए। ओके, दीपक सिंह जरा बताइए। दीपक सिंह ने वीडियो बंद कर रखा है, बिमलेश ने भी वीडियो बंद कर रखा है, इनसे मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। अंचित कुमार इज नॉट ऑल्सो। यस सर। बताइए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? सर सिमरन भारती, अंचित इज टेकिंग सो मच टाइम, एक्चुअली ही इज नॉट ऑन द लाइन, वो कुछ और कर रहा था मोबाइल के समय, पढ़ाई के समय, ही वाज नॉट एक्टिव। क्वेश्चन ए का आंसर बताना है या बी का? ए का। चाइल्ड। ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट चाइल्ड है। बेटा अंचित जानते हैं, जब आप यहाँ से हटते हैं तो तुरंत मुझे पता चल जाता है। सर बार बार कट जा रहा है। मुझे पता है, जब आप इधर उधर कुछ करेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा। अभी प्रॉपर्ली आपका मूवमेंट दिख रहा है। अभी प्रॉपर्ली मोबाइल मत छेड़िए, प्रॉपर्ली क्लास करिए, केवल दूसरा ऐप मत खोलिए। Now read the second one. The child. Child is the correct answer. Child is the correct answer. Right now I'm not telling. Right now I'm not writing. Just you all need to listen and complete your exercise after the. सर बार बार कट जा रहा है। Switch on the. बेटा आपके फोन से कुछ और अगर चल रहा है, कोई और वाईफाई एक्सेस कर रहा है तो प्लीज उनको बंद कराएं। एट ए टाइम एक फोन से एक ही चीज चल रही। अगर किसी वाईफाई से अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो उस फोन से, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट किए किसी दूसरे मोबाइल से, तो जिस मोबाइल में आपने हॉटस्पॉट ऑन किया है
उसमें कहीं पे कॉल कर दीजिए, अगर जियो है तो चलने लगता है। तो ठीक है, ना मूव ऑन द नेक्स्ट वन। प्लीज स्विच ऑन। कुछ भी नहीं चल रहा है सर। चलिए आप सर नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम करूँ, है आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा प्लीज, डोंट इंटरप्ट। और बाकी बच्चे बताइए बेटा, प्लीज स्विच ऑन द, व्हाट शुड आई राइट हियर? Light. Light. Light है. Take Light. let me take the name. Everybody have to tell by themselves. अपने आप नहीं बताना है, अपने आप नहीं बताना है फिलहाल। लाइट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द थर्ड वन, we are playing what should I write here? Hide and seek. सभी लोग अपनी मर्जी से बता रहे हैं, बताइए अपने मर्जी से बताइए, इजी है, you all can tell. We are playing hide and seek. We must hurry or we will never reach on, क्या होगा? करना चाहिए, we must hurry, हरी में सोता जल्दी, we must hurry, हमें जल्दी करना चाहिए, और अदरवाइज we will never reach on time, हम कभी भी समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो that means कि time is the correct word. Birds fly in the Sky. sky. And what is this? What should I write here? Why? Very good. Why? There is a question mark. Not a question mark है, that means कि you should write the question word here. Why are you talking? Now in the last line, give me some, what do you want? Rice. Okay, give me some rice, मुझे थोड़ा सा राइस दीजिए। I have some curry left on my plate. Good. ये तो बहुत ही दिखा, ये तो अपने मर्जी से आप लोग कर ले जाते हैं। There are some other more sentences are there. Mom asked my brother not to. Mom asked my brother. I have to, यहाँ पे क्या लिखा? Cry. Yes, sir. What about Yes, sir. in the last sentence? Right. Write a story. चलो ठीक है, everyone is correct. You all need to complete this exercise into your book after this session and send the pic of your work. अभी तुरंत जैसे ही सेशन खत्म होगा, तुरंत का तुरंत आधे घंटे के अंदर आप इसको कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। Now there is another exercise. क्या हुआ बेटा? Now come on the book C. Come into the book C. Let me check that key. What is there in book C? बुक सी में ये वोकैबुलरी जंक्शन जो था, इसको भी कंप्लीट करना था, आपको पता है कि नहीं? Yes. ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, डिस्कस किया जा चुका है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन आप लोगों ने शायद कंप्लीट करके नहीं भेजा है। सो बेटा आपको ये भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड और वीक वर्ड के बारे में पढ़ाया जा चुका है, आपको समझ में आ ही गया है, लोगों ने अच्छे से एक्सरसाइजेस भी सॉल्व किए थे। देन यू ऑल नीड टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस टू। ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आप भेजिएगा आज ही। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा, मैं बहुत जल्दी ऐसे करने वाला हूं, जो होमवर्क नहीं कर रहे मैं उनको बाहर कर दूंगा क्लास से। यशवर्धन सिंह ध्यान रखिएगा, मुझे वर्क चाहिए आज। अगर नहीं, अगर रास्ते में मिल गए तो पीटूंगा तुम्हें, बहुत टहलते हो। आपका जो होमवर्क नहीं आता, किसी दिन टकरा गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। Excuse me, sir. हाँ बेटा, सर ग्रामर जंक्शन का सर क्वेश्चन 2 सर कैसे किया जाएगा? बेटा ग्रामर जंक्शन अभी पढ़ाया थोड़ा जा रहा है, क्यों इतना परेशान हो? जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। इसको आपने, ये वर्क आपने भेजा तो है नहीं, कुछ करना धरना तो है नहीं, आपने कभी होमवर्क तो कंप्लीट नहीं किया। वोकैबुलरी जंक्शन को पढ़ाया गया कि आपने उसको वर्क को भेजा, फोटो भेजा उसका? बोलिए शिखर वर्मा, बोलिए। अभी ग्रामर जंक्शन पढ़ाया नहीं जा रहा है, वोकैबुलरी जंक्शन पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद फोनिक जंक्शन पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद ग्रामर पढ़ाया जाएगा। ग्रामर जंक्शन का सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, पहले बस छाप लो केवल बस। वोकैबुलरी जंक्शन और फोनिक जंक्शन के दोनों, बुक ए और बुक सी के सारे एक्सरसाइजेस मुझे चाहिए, शिखर वर्मा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मैं बहुत ही जल्दी फिर आने वाला हूँ आपके यहाँ पे। तो ये वीडियो दिखा दिखा के आपको पीटूंगा आपके पापा के सामने, ध्यान रखिएगा। अभिनय पांडे, आपके भी वर्क कंप्लीट होने चाहिए। Yes, sir.
ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, यू एवरीबडी नीड टू सेंड द पिक ऑफ देयर वर्क, ओके? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. आस्था, Excuse me, sir. यस अभी नहीं बोलिए। सर जो भेजने वाला सर आ गया है ग्रुप में। भेजने वाला लिंक अगर नहीं एक्टिव हुआ है तो अभी हो जाएगा, डोंट वरी, आई एक्टिव द लिंक, ओके, डोंट वरी। यस सर। जब आपकी क्लास खत्म होती है उसके 10 मिनट बाद एक्टिव हो जाता है। तो आप दोनों सभी लोग ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर ले जाएंगे ना? Yes, sir. यस सर। यस। मीनिंग आपको नहीं पता होगा, मान लीजिए किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है, अगर मीनिंग नहीं पता है देन यू कैन गूगल फ्रॉम हियर, अदरवाइज यू कैन आस्क फ्रॉम द एल्डर वन या डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, ओके? अदरवाइज गूगल में सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैल इन हिंदी, आप ऐसे ऐसे सर्च कर लीजिएगा, यू वुड बी गेटिंग द आंसर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर आप मोबाइल लेकर के घर वालों को बेवकूफ बनाते रहो, नहीं सुनना। ये वर्ड मीनिंग खोजने का काम सिर्फ 1 मिनट का काम है, दिन भर का काम नहीं है, ओके? यस सर। आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes. हर समय मैं नहीं एक्सेसिबल हूँ, तो आप अपने मर्जी से भी अपना जो भी आंसर है यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दोज थिंग्स। फिलहाल आप लोग धीमे धीमे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी ऐसे ही। नाउ कम टू द फोनिक सेक्शन, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है ये। क्या करना है इसमें, क्या करना है जरा ध्यान से पढ़ते हैं पहले। अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। कई सारे यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, इनको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। अनस्क्रैम्बल मींस क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू हियर, सही करके राइट करना है। सर सही करके राइट। ये आपका इधर उधर कर दिया गया, रीअरेंज। आपको जो स्पेलिंग्स है उसको रीअरेंज करना है, क्या मीनिंगफुल वर्ड्स निकले, इस तरह रीअरेंज करना है जिससे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड्स मिले। देन यूज द नंबर्स, फिर उसके बाद नंबर्स का यूज करते हुए क्या करना है, देन यूज द नंबर्स टू राइट द रिलेवेंट लेटर्स एंड द करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस टू गेट द मैसेज। ध्यान देना है। लेट मी डू वन थिंग, एक्चुअली द माउस इज नॉट वर्किंग। ओके बेटा, what you need to do, then use the numbers। नंबर्स का यूज करना है। कौन से नंबर, हाथ जो आप स्क्रैम्बल करके, जब अनस्क्रैम्बल करके, जब आप इसको स्पेलिंग्स को रीअरेंज करके जब मीनिंगफुल वर्ड्स आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो उसमें जो ये फर्स्ट लेटर है ना, ये 6 वाले पोजीशन पे आपको लिखना है। कहाँ पे, नीचे आपका यहाँ पे ना, नीचे यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक एक बॉक्स बना हुआ है, यस सर। ओके? तो यानी उसका जो पहला लेटर है जो 6 है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से सारे वर्ड्स को आपको अनस्क्रैम्बल करना है कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स निकालने के लिए। और एक चीज ध्यान रखना है, आई साउंड्स वाले वर्ड ही होंगे, क्योंकि फोनिक सेक्शन में अभी आपको वही पढ़ाया गया है, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो कैन यू टेल एनीबॉडी द फर्स्ट वर्ड को अनस्क्रैम्बल करके बताइए कौन सा वर्ड बनेगा। अनुष्का यादव बताइए। Sir, pride. प्राइड, PRIDE, प्राइड, वेरी गुड। नाउ सेकंड वर्ड को कौन बता सकेगा, बताना नहीं है, जस्ट यू नीड टू रेज योर हैंड ओनली। द सेकंड वर्ड, ओके, साक्षी पासवान बताइए। सर वाइस। वाइस, वेरी गुड। थर्ड वर्ड कौन बता पाएगा, शो मी योर हैंड। अभिनय पांडे बताइए थर्ड वर्ड। यस सर। सर READIM, रेडीमेड। रेडीमेड का स्पेलिंग ये नहीं होता, वाई भी होता है रेडीमेड। चलिए ठीक है। एनीबॉडी एल्स, कौन इसको सोच सकता है? अनुष्का यादव, आप मुस्कान यादव की बुक लेकर के बैठी हो, मुझे सब पता है। बेटा मेरा माउस नहीं काम कर रहा है सही से, ये भी चल रहा है। आपको स्टार्ट कर सकते हैं, आई थिंक। चलिए एनीबॉडी एल्स, अनुष्का के अलावा कोई और बता सकता है थर्ड वर्ड? चलिए अनुष्का आप ही बताइए। Sir, armid. क्या होगा बेटा, इधर स्पेलिंग बताइए। ARMIED. ARMIED. ये क्या होता है, इसका मतलब? ARMIED क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड्स भी तो बताने हैं आपको। क्यों?
अभी प्रॉपर आवाज आ रही बेटा? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लिखे आ रहा है, लो सिस्टम रिसोर्सेज में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, क्यों स्लो चल रहा है, नॉट गेटिंग द आइडिया, बट चलिए ठीक है। ये बेटा ये एडमायर होगा, एडमायर, ADMIRE, ओके? Yes, sir. Yes, sir. इन द सेम वे फॉर द फोर्थ वर्ड के लिए कोई वर्ड सोचिए। KIEL कुछ भी नहीं है, EIKL कुछ नहीं बन पाएगा, LI सर मैं आइडियल Like is the correct one. Like is the correct one. And the what about it? NRIT. देखते हैं किसके पास माइंड है इसको बताने के लिए। Mind. Remind. माइंड इज द करेक्ट आंसर। सभी के पास माइंड है, मैंने बताया, अपने माइंड का यूज करते हुए सुन लिया। नाउ Why? व्हाई, व्हाट इज दिस? Why? Sir, idea. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आइडिया? IDEA. यस, आइडिया। व्हाट इज दिस? Find. ये तो सभी बच्चे बताइए। Child. पता है फर्स्ट लेटर, इसमें जो फर्स्ट लेटर क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या आया था? FIND, फाइंड आया था, तो आई का यहाँ पे आई लिखेंगे, I 2 3 4 5 क्या बनेगा? 2 यहाँ पे क्या आया था, क्या लिखा जाएगा? ये सेकंड लेटर क्या होगा? L. थ्री का क्या होगा यहाँ पे? थर्ड क्या है में? ADMI क्या आया था? I। फोर्थ क्या था? वेयर इज द फोर्थ? K. फोर इज दिस, वेयर इज द K. and fifth one is which one is the fifth? E. तो ये आपका 2 3 4 5 से कौन सा वर्ड बना? Like. I like। इसी तरह 6 7 8 9 10 11 12 का आप लोग फाइंड आउट कर ले जाएंगे। Yes, sir. तो फाइंड आउट करना है, you need to write the answer, the correct answer, okay? Yes, sir. Yes, sir. This is how we have completed the phonic junction 2, book A, book C दोनों में कंप्लीट होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट डे अगली बार ग्रामर जंक्शन में पढ़ाऊंगा, तो पहला दूसरा तीसरा, जो दूसरा ही नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा, तो हो सकता है आप अपने मर्जी से कर ले जाओ, लेकिन पहले फोनिक जंक्शन और वोकैबुलरी जंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करके आप जरूर फोटो भेज दीजिएगा। ओके, Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। इज देयर एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. No, sir. नो सर। No, sir. तो पूछ सकते हैं। No, sir. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। So goodbye. Goodbye.